اور میرے آقا نے خود بھی اس کا حکم دیا ہے، اس کے اوپر حدیث کریمہ موجود ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے، تھوڑی ایک دو باتیں کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ کہے گا اللہ۔ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی عمل بتا دے میں کر جاؤں جس کا ثواب اس کو جائے۔ کوئی عمل بتا دے، کوئی عمل بتا دے، میں اپنی ماں کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے سعد اب وہ مر گئی ہے چھوڑ، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، کیونکہ صحابی کی ماں ہے نا، سبحان اللہ کہے گا، صحابی کی ماں تو بخشی بخشائی ہے نا، وہ تو بخشی بخشائی ہے کیونکہ صحابی کی ماں ہے، سبحان اللہ، صحابی کی ماں ہے۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جا چلا جا چھوڑ، کوئی ضرورت نہیں ہے ایصال ثواب کرنے کی، نہیں نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے سعد ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ پانی کی بڑی کمی تھی اس دور میں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ایک کنواں تیار کروا دو، پانی کا چشمہ بنوا دو، کیا کر دو؟ پانی کا چشمہ بنوا دو، جب تک اس چشمے سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کی روح کو ثواب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہے گا، پتہ کہ چلا کہ پانی پلانا، کھانا کھلانا یہ ہمارا کوئی طریقہ نیا نہیں، میرے آقا نے حکم دیا ایصال ثواب کے لیے پانی پلاؤ، تو صحابہ نے پانی پلایا، کھانا بھی کھلایا، سبحان اللہ۔ اور اب بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ کہے گا۔ اور میں گزارش کروں آگے دیکھیں آپ، پھر صحابی رسول چلے گئے، انہوں نے جا کر کے کنواں تیار کیا، کنواں تیار کیا، پانی کا چشمہ بن گیا، کہ پانی کا چشمہ تیار ہو گیا، اور پھر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ عرصے کے بعد پھر حاضر ہوئے، کہا آقا پانی کا چشمہ تو تیار ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں رکے نہیں، میرے آقا نے کچھ صحابہ اکرام کو ساتھ لیا، کیا کیا؟ صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور کنویں کے اوپر تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ جہاں پانی کا چشمہ تیار کیا تھا وہاں تشریف لے گئے میرے آقا دو جہاں۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا کر کے کنویں کو جب دیکھا دل خوش ہوا، سبحان اللہ، اور پھر کنویں کا نام رکھا بیر و ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں، سبحان اللہ کہے گا، سعد کی ماں کا کنواں۔ آج بھی اہل خیر حضرات، بڑے آدمی جو لوگ جن کو اللہ نے خوب دیا ہے، جب وہ مسجد میں پنکھا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں پنکھا دیتے ہیں، پنکھے کے پر پہ لکھا دیتے ہیں برائے ایصال ثواب والدہ یا والد یا بھائی جو بھی ہے، نام لکھاتے ہیں نا، تو پتہ کہ چلا کہ یہ نام لکھانا بھی بدعت نہیں ہے۔ میرے آقا نے خود یہ عمل کر کے دکھایا، سبحان اللہ، اور نام اس کنویں پہ لکھا تو نہیں بلکہ اس کنویں کا نام رکھا، سبحان اللہ، کیا رکھا؟ وہ سعد کی ماں کا کنواں۔ آج ہم 11ویں دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غوث کا بکرا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہی کیا ہے، تو کچھ لوگ تنبیہ کنج کے میدان میں آ جاتے ہیں یہ بکرا حرام ہو گیا کیونکہ غوث کا نام لگ گیا اس کے ساتھ، استغفر اللہ۔ نام لگانے سے اگر چیز حرام ہو جاتی تو میرے آقا سعد کی ماں کا کنواں نہ کہتے، کیا نہ کہتے؟ یہ نہ کہتے کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ حرام چیز کب ہوگی اس کا ثبات فرمائے، حرام بکرا کب ہوگا؟ حرام اس وقت ہوگا جب ہم چھری پہ پڑیں گے یا غوث المدد کیوں، تو ذبح کریں گے تو بکرا ہو گیا حرام۔ یہ علماء کرام موجود ہے، جب یا نبی کیا کر، یا ولی کیا کر، یا علی کیا کر، یا غوث کیا کر، کوئی بھی کسی غیر اللہ کا نام لے کر ہم بکرا ذبح کریں گے تو بکرا اس وقت حرام ہوگا، اس وقت کیا ہو جائے گا؟ حرام ہوگا۔ میں گزارش کروں اس پر ایک ثبوت دے لیں، جب آقا دو جہاں مال غنیمت ان کو ملتا تھا،
कुफार की जब जंग होती थी तो वहां से कुछ भेड़ बकरी जो भी उनके पास माल होता है वो उनको मिलता, वो लाते, मालिक नहीं को तो मिलता। तो साहबा इकराम ने एक बार अर्ज की, या रसूलल्लाह ये जो बकरे वगैरह आप हम ला रहे हैं माल गनीमत के अंदर, ये तो इन लोगों ने बुतों के नाम पे पाले हुए हैं। किसके नाम पाले हुए? खुबल, उसमें खुबल एक बुत था, लातूजा बुत था, हाम साम ये बड़े बड़े बुत थे, उनके नाम पर वो पालते, जानवर पालते थे और फिर उन्हीं का नाम लेकर जवा भी करते थे। क्योंकि वो मुशरिक थे ना, वो क्या थे? मुशरिक थे। तो मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम ने याद किया ये तो बुतों के नाम पे इन्होंने पाले हुए हैं, तो मेरे आका ने फरमाया उन्होंने पाले, तुमने नहीं पाले, तुम्हें माले गनीमत पे मिले हैं, तुम अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चलाओ। क्या करो? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चलाओ, तुम्हारे लिए हलाल है। सुभान अल्लाह। चीज हराम तब होती है कि जब उस पर गैरुल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िबा किया जाए। क्या किया जाए? गैरुल्लाह का नाम लेकर आप ज़िबा करो तो वाकई हराम है। तो ऐसे अगर निस्बत करने से, जैसे हम कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी के अंदर 7 लोग जमा होते हैं, मगर उनमें भी 7 के 7 सुन्नी होने चाहिए। बेशक ऐसा ना हो कि कुछ हम तंबी कुंजी वाले आ जाए तो कुछ दूसरे आ जाए तो वो सब की बर्बाद है ना। बेशक आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आप मैं गुजारिश करूं, 7 आदमी आपके पास है तो उनके नाम लिए जाते हैं कि नहीं? जब दुआ करते ये कुर्बानी फलां बिन फलां की तरफ से, ये फलां बिन फलां की तरफ से, ये फलां बिन फलां की तरफ से, नाम होते हैं कि नहीं? नाम लिखे जाए, नाम होते हैं ना। तो अगर नाम की निस्बत करने से जनान हराम है तो कुर्बानी का गोश्त खाएगा कौन? हराम मैंने पहले बोला है कि कुरान तब होगा, कुरान का फैसला है कि जब तुम ज़िबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लोगे। इस तरह निस्बत करने से जानवर हराम नहीं होगा, नहीं होता है। इसलिए मैं गुजारिश करूं, क्या बताया? पता क्या चला कि इसाले सवाब करना आज का नया तरीका नहीं है, बल्कि आका के दौर से चला आ रहा है। सुभान अल्लाह के आका ने नाम रखा, कौए का नाम रखा और कहा है अल्लाह जब तक दुनिया पानी पीती रहे मेरे साथ की माँ की रूह को सवाब अता फरमा। क्या फरमाया? रूह, माँ की रूह को क्या फरमा? सवाब अता फरमा। थोड़ा आस्था, क्योंकि कुछ लोग डर भी जाते हैं, है ना। तो मैं गुजारिश करूं, जब जन्नत के अंदर एक पेड़ लगाया जाता है, जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अगर ज्यादा जोर से कहोगे तो उसका पेड़ गिर भी जाएगा। थोड़ा आराम से ना। तो वो मैं गुजारिश करूं, ऐसा लोग कि जो साथ में बंदा बैठा वो डर जाए, है ना। तो किसी को डराना भी ठीक नहीं है। आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, शाइस्तगी से जिसको कहते हैं ना, सुभान अल्लाह के, ताकि ऐसा प्यारा मीठा तरीके से सुभान अल्लाह। तो एक हदीस और आप समाप्त फरमा ले, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर पे निकले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह के क्या, और सफर में जाते जाते रास्ते में कब्रिस्तान आया। यार जोर से सुभान अल्लाह, अपने अकीदे पे नाज करें। सुभान अल्लाह, अपने अकीदे पे नाज करें। तो क्या जब कब्रिस्तान आया तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्रिस्तान पर रुके। क्या हो गए? रुक के, और रुक कर मेरे आका ने दुआ करना शुरू की। सुभान अल्लाह। दुआ करते करते उन्होंने कहा, सहाबा इकराम में से किसी को कहा कि जाओ एक हरी टहनी तोड़ के लाओ। सुभान अल्लाह। क्या करो? एक हरी टहनी तोड़ के लाओ। सहाबा इकराम ने खजूर की एक ताजी टहनी तोड़ के लाई, और ताजी टहनी जब तोड़ के लाई मेरे आका को पेश की। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस टहनी के 2 हिस्से किए, और सामने 2 कब्रें थी, उन दोनों कब्रों पे उन 2 टहनियों को गाड़ दिया। यहां से फूल चढ़ाना भी साबित हो गया। प्लास्टिक के फूल नहीं बल्कि गुलाब के फूल। कब्र पे फूल डालना, हरी घास डालना, टहनी लगाना, ये भी साबित है। सुभान अल्लाह कहेंगे आप। तो क्या मेरे आका ने क्या किया? उन 2 कब्रों वालों पर जब गाड़ा उसको टहनी को, तो सहाबा इकराम ये सारा मंजर देख रहे हैं। जो मेरे आका जानते हैं वो साबित हो जानते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका की बड़ी शान है, उनको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है। सुभान अल्लाह। वो जानते हैं कि जमीन के ऊपर क्या हो रहा है, जमीन के नीचे क्या हो रहा है, अल्लाह की अता से। सुभान अल्लाह। अल्लाह की अता से। जाती इल्म तो रब का है, अताई इल्म
आका दो जहां से सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हूं, आपने ये टेनियां इन कब्रों पे क्यों गाड़ी है? तो मेरे आका ने फरमाया कि इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। क्या हो रहा है? अजाब हो रहा है। और आका ये भी जानते हैं कि अजाब किस वजह से हो रहा है। मेरे आका ने फरमाया कोई बग़ैर बड़े गुनाह नहीं है, छोटे छोटे गुनाह है, मगर क्या क्या गुनाह है? कहा इनमें से एक चुगली किया करता था। आज तो है ना, यहाँ से बात नहीं हो, आजकल तो सोशल मीडिया है, फौरन रिकॉर्डिंग की तो फौरन अपने जो मुखालिफ है उसको भेज देते हैं, जी आज मौलवी साहब ने ये तकलीफ की है, भाई मौलवी ने ये बात की है। आजकल तो चुगली मारना भी आसान हो गया, जाने की जरूरत ही नहीं है उसके पास, दूसरे के पास। तो मैं गुजारिश करूं, तो एक चुगली किया करता था, आका ने फरमाया एक चुगली किया करता था, और एक पेशाब की छींटू से नहीं बचता था। आजकल कोई बचता होगा, ये बुजुर्ग माशा तो बच जाएंगे क्योंकि शराब में लगाते हैं, कुछ नौजवान ही बचते हैं क्योंकि जिनके थोड़े कपड़े सही होते हैं, वो खुले पेंट वगैरह। और आजकल माज़अल्लाह देखें आप, आजकल तो ऐसी पेंटें चली हैं कि जैसे बंदूक के ऊपर कवर चढ़ाई हुई, ऐसा बिल्कुल टाइट। तो मैं गुजारिश करूं, मेरे आका ने फरमाया इन दो गुनाहों की वजह से इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा था। एक चुगली किया करता था और एक पेशाब की छींटू से नहीं बचता था। सहाबा इकराम ने फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो हमने मान लिया कि इनको अजाब हो रहा है, बताओ ये टहनियां गाड़ने से क्या होगा? टहनियां गाड़ने से क्या होगा? तो मेरे आका ने फरमाया है, मेरे सहाबा इकराम, तुम क्या समझते हो कि तुम ही रब की तस्बीह करते हो? ये जो हरी घास है, हरी टेनियां है, हरे लहलाते बाग है, ये सारी रब का जिक्र करती है। सुभान अल्लाह। क्या करती है? रब का जिक्र करती है। जब तक ये जिक्र करती रहेंगी, सुभान अल्लाह, जब तक ये टेनियां हरी रहेंगी, सुभान अल्लाह, जब तक ये टेनियां हरी रहेंगी, जिक्र करती रहेगी, सुभान अल्लाह, क्या करती रहेगी? और इन कब्र वालों को की अजाब में तखफीफ हो जाएगी। अब आप देखो, टहनी जिक्र करे, टहनी जिक्र करे तो गुनहगार को सवाब पहुंचता है। तो अगर अशरफुल मखलूकात बंदा बैठकर 75,000 मरतबा जिक्र और अस्कार की महफिल डाले, कुरान पढ़े, तिलावत करे, और लास्ट पे क्या, अल्लाह जो हमने पढ़ा है इसका सवाब हमारे पिछले के रूह को अता फरमा, इसमें कौन सी बिदअत की चीज हो गई? मैं गुजारिश करूं, जिक्र का सवाब पहुंचता है, मगर मौलवी साहब कहते हैं कि पहुंचता है, सवाब पहुंचता है, मगर साथ में ये नहीं बताते कि पहुंचता किसको है ना? पहुंचता उसी को है कि जो ये कहता जाता है कि या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह कहेगा, और जो ये कहे कि या रसूल अल्लाह के ना शिरक है, उसके लिए सारी, मैं कहूँ सारी कायनात कलमा पढ़ती रहे, सारी कायनात कुरान पढ़ती रहे, उसके रूह को सवाब नहीं जाता है। समझ गया? मैं गुजारिश करूं, जो ये कह रहा है या रसूल अल्लाह के ना शिरक है, शिरक ऐसे इन्होंने रटा हुआ है। और ये मुशरिक कह रहे हैं, माज़अल्लाह, ये जो तबलीग कुंजी वाले हैं, ये सारे मैं कहूंगा उम्मत मुसलमान के एक बहुत बड़े तबके को ये लोग मुशरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत बड़े तबके को ये लोग मुशरिक कहते हैं। मगर याद रखो, मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत हर अमल करेगी, मगर मेरी उम्मत के अंदर शिरक नहीं होगा। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत ऐसी शान मेरी उम्मत की कि वो शिरक नहीं करेगी, शिरक नहीं करेगी। मेरे रब का महबूब कह रहा है कि मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, और ये कह रहा है कि शिरक करना है। अस्तगफुरुल्लाह। अब किसकी माने? किसकी माने? तो मैं गुजारिश करूं, मेरे आका से सच्ची पक्की मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। सवाब उसी को पहुंचता है कि जो आका से मोहब्बत करके जाता है। सुभान अल्लाह। कोई कहता है ना, करिए बख्शा बुरे हाल मोए, न खफन जनाजा न हाथ खड़े हुए, करिए बख्शा बुरे हाल हड खड्डे विच फांसियां खड़ा कर। और समझे नहीं मेरी बात को ना? एक शेर है, करियो बख्शा बुरे हाल मोए, न खफन जनाजा न हाथ खड़े हुए, है ना? करियो बख्शा बुरे हाल हड खड्डे विच फांसियां खड़ा वास्ते कर। तो मैं गुजारिश करूं, ये खड्डा क्या है? ये किसी ने ऐसे नहीं बनाया है, मजाक नहीं है, ये हकीकत शेर है। क्योंकि मुनाफिक के लिए कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, और मोमिन के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जब वो खड्डे में फंसता ना जाके, क्योंकि उसके मुनाफिक तो खड्डा ही हो गया ना, बुरे हाल हड खड्डे में फांसियां खड़ा वास्ते काट।
तो वहां भी तुम्हें अगर काम आएगा तो आका का वसीला काम आएगा। तो अल्लाह ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न माने कि कयामत में अगर मान गया आज ले पनाह। जैसे फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मान जा रब एक है, मान जा, उसने नहीं माना, है ना। तो जब वो उसको डुबकी लगी ना उसमें दरिया में, दरिया नील के अंदर जब गर्क होने लगा तो उसको क्या लगा, आमन्ना बिरब्बि मूसा, मैं मूसा के रब पे ईमान लाता हूं। उस वक्त उसको पर्ची मिली ना, कहा अब जो वक्त खत्म हो गया थे। तो काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अरे वहां तो अव्वलीन और आखिरीन जो दुनिया में सलाम नहीं भेजते थे वो भी महशर में उनकी शान को देखकर सलाम भेजेंगे, मगर वहां उन्हीं का सलाम कबूल होगा कि जो बिन देखे आका पर सलाम पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। अब बिन देखकर तो फिर उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया था। जब लगा उसको, वो पहले अपने खुदा कह रहा था, जब किश्ती इसमें भंवर पे फंसी कह रहा जी हाँ मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, मगर उस वक्त का ईमान लाना काबिल कबूल नहीं था। अगर कश्ती अभी बाहर होती तब ईमान ले आता तो मान जाता, मगर जब अल्लाह ने उसको दुबचा लगवाया ना, ऐसे इधर से उधर फेंका, उधर से इधर, 2-3 दुबकान उसको जब लगे ना, अब कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं। तो पता चला कि ईमान वही काबिल कबूल है जो बिन देखे हो, फिर गैब पे ईमान लाना है। क्या करना है? गैब पे, हमने तो गैब ही पे लाना है ना, साहबा ने देख के लाया, हमने गैब पे ईमान लाना है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कौन कौन से अमाल हैं जिनका सवाब पहुंचता है। 2-3 बातें मैं इसमें मेरे पास मौजूद हैं कि जो ये इसाल सवाब के लिए आप कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये भी कहीं ना ये चीज है ना, तो अब ये आज मेरे सामने आई है, इसमें लिखी हुई कहीं ना कहीं है ना, इसलिए सबूत इसका है। तो हमेशा फायदा पहुंचाने वाले 7 अमाल। सैयदना अनस बिन मालिक, सुभान अल्लाह। तो अगर इसाल सवाब है ही नहीं तो फिर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जरूरत थी ये हदीस पेश करने की। अगर इनकी बात हम मान लें कि इसाल सवाब होता ही नहीं, शुरू से खत्म है, बिल्कुल सिस्टम ही नहीं कोई। तो मैं गुजारिश करूं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, 7 चीजों का अजर बंदे को मरने के बाद भी उसकी कब्र में उसे पहुंचता रहता है। ये बात साबित हो गई कि अनस ने भी कह दिया कि वो सवाब उसको पहुंचता रहता है। सुभान अल्लाह। क्या है? एक नंबर, जो दीनी इल्म सिखाया उस पर अमल होता रहा और आगे सिखाया गया। सुभान अल्लाह। जो वो अमल किसी को सिखा के गया है उस पर अमल भी हो रहा है और उसका सवाब उसके रूह को जाता है। दूसरा, या किसी को कुरान हदिया में दिया, या किसी को कुरान क्या किया, आप किसी मदरसे में पहुंचे, वहाँ फाज इकराम है, वहाँ 10 हाफिज हैं, 5 हैं, 2 हैं, आपने 2 ही अफाज को, ये है कि हाफिज को आपने कुरान लेके दिया और वो पढ़ता रहा, जब तक पढ़ता जाएगा आप दुनिया से चले गए, आपकी रूह को सवाब ज्यादा रहेगा। जहां तक सदका जारिया होगा वो आगे पढ़ाएगा, वो आगे पढ़ाएगा, वो आगे पढ़ाएगा, पढ़ाते पढ़ाते नस्लें 7 पीढ़ियां भी गुजर जाएगी, जब तक वो कुरान पढ़ा हुआ आगे पढ़ता जाएगा उसके रूह को सवाब जाता रहेगा। दूसरा, तीसरा, या कोई सायादार या फलदार दरख्त लगाया। आपकी जमीन से रास्ता है, एक मिसाल देता हूँ, आजकल तो लोग बाढ़ देते थे ना, इतू लथो है लात पर एक बार 10 महीना से पानी जब हमने एक बार लग तो भी दसने तो लो एक बार तेरा दूसरी दिन। तो क्या रास्ते के बारे में क्या फरमाया? या कोई सायादार या फलदार दरख्त लगाया। सुभान अल्लाह। आपके जमीन से रास्ता, आपने कोई फलदार दरख्त लगा दिया या सायादार दरख्त लगा दिया कि यहाँ से लोग, आजकल तो गाड़ी का सफर है ज्यादा, पहले जमाने में होता था बहुत लोग चलते थे। तो मैं गुजारिश करूं, आपने वो फलदार दरख्त लगा दिया, वहां लोग आके साया में बैठेंगे, आराम करेंगे, वो भी स्वाब जाता रहेगा। सुभान अल्लाह। आगे से बात फरमाएं, या कोई कुआं खुदवाया, पानी का भी आपने बोला आपको, या कोई कुआं खुदवा दिया, आपने कोई कुआं बनवा दिया और वो उसका स्वाब भी जब तक दुनिया पानी पीती रहेगी। आज भी बीर उम्मे साथ जो मौजूद है, दुनिया आज भी उससे पानी पीती है, तो बराए साल स्वाब किसकी है? हज़रत साद की मौत। सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले से आज तक वो कुआं जारी है, लोग पानी पीते हैं और कुछ किस्मत लोगों ने पिया भी होगा उस कुएं से जो आका ने बनवाया है, तो आज तक कर रहा है स्वाब। सुभान अल्लाह। या नेक
یا نیک اولاد جو اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. کیا ثابت ہوا کہ میرے آقا دو جہاں نے 1400 سال ہی پہلے یہ کہا ہے کہ وہ اولاد نیک ہے کہ جو اپنے والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں. ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ ثواب نہیں، یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ اولاد نیک ہے. اور یہ کہ یہ مر گیا مردود نہ سلوات نہ ضرور اپنا عمل لے کے گیا جی چھوڑو، کیا ضرورت ہے اب دعا کرنے کے، ختم پڑے گی چھوڑو. استغفر اللہ العظیم. ارے تمہیں ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے والدین جو دنیا سے گئے ہیں وہ یا رسول اللہ کہتے گئے ہیں، ایمان کے ساتھ گئے ہیں. ہمارے اوپر تو ہزاروں فتوے لگائے، ہم تو ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہے. سبحان اللہ. ان کے لیے کیونکہ ہمارے آقا نے فرما دیا وہ اولاد نیک ہے کہ جو سارے ثواب کرتی ہے. ہو گیا. یا مسجد تعمیر کروائی. کیا چھٹا انعام، چھٹی بات کام کون سا ہے؟ یا مسجد تعمیر کروائی یا نہر جاری کرائی. سبحان اللہ. آپ کے یہاں کوئی دان کی فصل ہے، کسی جگہ میں ایسا سلسلہ ہے آپ کی زمین سے پانی کی پول جا رہی ہے یا نہر جا رہی ہے، تو اس کو بند نہیں کرنا بلکہ اس پول کو چھوڑنا ہے تاکہ آگے فصل رکھے. سبحان اللہ. وہ پول آپ بنوا دو گے یا نہر جاری کروا دو گے، اس کا بھی ثواب آپ کے چاہنے والوں کے نام اعمال میں جائے گا. مجھے ایک بندے نے واٹس ایپ پہ سوال کیا، جی پیر صاحب کچھ لوگ، ایک بندہ کہتا ہے کہ روح جمعرات کو نہیں آتی. بندہ تو دوسرا وہ ہے، سمجھ گیا. تو میں نے کہا وہ بندہ ٹھیک کہتا ہے. میں نے تم بھی ٹھیک کہتے ہو. کہا جی کیسے؟ میں نے کہا وہ ٹھیک اس لیے کہتا ہے کہ روح جمعرات کو اسی کی آتی ہے کہ جو روحیں آزاد ہوتی ہیں. سبحان اللہ کہیں گا. جب بندہ مر جاتا ہے تو جو نیک ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا کر دیتا ہے؟ سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے. اور نورانی قندیلیں ان کے لیے موجود ہوتی ہیں اور وہ جہاں چاہتی ہے جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور جو منافق ہوتا ہے اس کی روحیں قید کرتی جاتی ہیں. تو وہ بیچارے ٹھیک روتے ہیں نا کہ روح نہیں آتی، کیونکہ ان کی نہیں آتی، کیونکہ قید ہے. ان کو پتا ہے کہ ہمارا کرتوت ہی کیسے ہے. جیسے کرتوت کو لے کے جائے گا اس کو ویسا چیلے ملے گا. تو سنی کو پتا ہے کہ ہماری روحیں آئیں گی. سبحان اللہ. آج سے 1700 سال پہلے کی بات ہے. میاں محمد صاحب جو ہوئے ہیں سیف الملوک، جنہوں نے تحریر فرمائی ہے، ایک روحانی شاعر ہوئے. سبحان اللہ کہیں گا. کلام ہے ان کا. ان کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ روز جمعے دے سارے روح جاسن اپنے کرنو، تیرا روح محمد بخشا جاسی کیڑے درنو. کیا کرنا ادھر چلنا. آپ دیکھو کہ میں گزارش کروں، روحیں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ اگر وہ جاتی ہیں تو بات ہوتی ہے. جو کہہ دے وہ کہاں جائے گی؟ اب ہمیں یہاں کوئی روک دے، ہمیں